Assalamu alaikum class. Okay, I hope you all are fine. Okay, I just want to let you know that we are still doing a writing stage. Actually, I was a bit busy, so I uploaded the lecture from writing skills. That was the essay writing. That is from the list of writing skills. But we were doing a pre-writing stage, and I left some of the uh, major points of pre-writing stage, some techniques, because I was busy, so I was unable to make a lecture on it. So I just uploaded essay writing. That is also included in your syllabus from writing skills. अभी वो हमने writing skills जो हैं वो we had to start that. So pre-writing stage was left with few techniques. ठीक है, and those techniques are, today is your lecture number 20, and those techniques are uh, these are also known as creative techniques. ठीक है, प्री राइटिंग स्टेज तो है, मतलब बिफोर राइटिंग वी मस्ट नो अबाउट दीज टेक्निक्स, वी मस्ट नो अबाउट दीज स्टेजेस. ठीक है, ये हमें कुछ टेक्निक्स और स्टेजेस का पता होगा, सो आर राइटिंग विल बी अफेक्टिव. और इसको हम क्रिएटिव टेक्निक्स भी कहते हैं. ठीक है, not these are not just used for the writing skills, but we can also use it or apply it in our daily life routine. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइटिंग को ही लेकर हो सकता है. the things which I had to explain you are, we can apply it on our daily life routine, we can use it in our routine, not just for the writing. These are mind mapping, brainstorming, free writing, journalist questions. So these techniques we use it in writing mostly because we are dealing with the writing skills and the pre-writing stage. So I will let you know related to writing. ठीक है, कि किस तरह these stages relates to writing. Mind mapping क्या होता है कि when you map something in your mind. Okay, according to writing, ठीक है, you have one topic in your mind and you want to discuss it with a map, with the help of map. ठीक है, so what you do, you have many points in your mind, you have many ideas related to that one topic in your mind. So what you do, you create a map. ठीक है, where you highlight those ideas, you highlight those points, important and major points, and some least points, some important points. ठीक है, आप फिर उनको एक सीक्वेंस में जो है वो एक मैप बनाते हो. ठीक है, we had came across many maps in our books, in our notes, even मतलब हम बहुत सारे ऐसे मैप्स हमने देखे हैं, like in your textbooks you have came across such maps. ठीक है, उनका बेसिकली उनका इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है, what is the important role of maps, के they discuss the whole idea within a one picture. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम ग्राफ्स एंड चार्ट्स, एग्जैक्टली द सेम आइडिया यहाँ मैप पे भी होता है कि जैसे हम ग्राफ में, एक चार्ट में सब कुछ एक इमेज के थ्रू डिस्कस कर देते हैं. मैप इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस, कि हम एक मैप में पूरा अपना आइडिया डिस्कस कर देते हैं. ठीक है, इट्स लाइक एन पिक्चर. मैप एक पिक्चर की तरह ही शो होता है. ठीक है, डायग्राम जस्ट लाइक, तो उसमें हम अपना पूरा आइडिया शो कर देते हैं जस्ट थ्रू द वन पिक्चर. ठीक है, हम मेजर एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देते हैं, आइडियाज़ लिख देते हैं, सिर्फ उनके क्या होते हैं, बुलेट्स बना के. ठीक है, लिस्टिंग जो एक लिस्टिंग वे होता है, लेकिन हम जो है वो इस तरह से मैप में भी लिस्टिंग कर देते हैं, अपने बुलेट्स बना देते हैं. वो होती है माइंड मैपिंग. वो आप अपने माइंड में भी बना सकते हैं. ठीक है, आप उसको फिर
इफ़ यू हैव दैट मैप ऑफ रिलेटेड टू योर टॉपिक, तो क्या होता है कि ऑब्वियसली फिर आप उसको क्या करते हो, प्रिंट करते हो अपने रिटन फॉर्म में, ताकि आपके पास एक जो है वो रह जाए कि मतलब ठीक है अब ये इस तरह से। अच्छा, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है? ब्रेन स्टॉर्मिंग भी इसी तरह होती है कि आप जो है वो मेजर आइडियाज़, ठीक है, मेजर पॉइंट्स जो हैं उनकी स्टॉर्मिंग करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको आगे सारा डिस्कस करती हूँ। फ्री राइटिंग क्या होती है कि when you don't notice the tenses, ठीक है, when you don't notice your mistakes of grammar, ठीक है, grammatical, you just ignore the grammatical mistakes, you just ignore the tenses and the formation of sentence, but क्या होती है, फ्री राइट होता है, मतलब whatever you have in your mind related to one specific topic, you just write it freely, ठीक है, आप फ्री राइटिंग करते हो। ये भी एक टेक्निक है, क्रिएटिव टेक्निक है, आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय दिस टेक्निक, आप फ्री राइट करें स्टार्ट में। अब जैसे मतलब द स्टूडेंट्स हु डोंट हैव गुड ग्रामर, ठीक है, हु डोंट नो अबाउट द गुड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, तो वो क्या कर सकते हैं कि फ्री राइटिंग से अपनी जो है वो अपनी जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी गुड प्रैक्टिस बिफोर राइटिंग, ठीक है। राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए यू कैन यूज़ दिस टेक्निक। जर्नलिस्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, मतलब कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं? 6 W's का मतलब होता है कि W's जब भी आ जाता है कहीं पे भी, आपको कहीं ग्रामर में आ जाए कि 5 W's या 6 W's, तो W's वाले क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। सो ये बेसिकली मैंने आपको एक मेन आइडिया दिया है, बर्ड आई व्यू, ठीक है, कि क्या आज हम अपने लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। सो दीज टेक्निक्स ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव टेक्निक्स, ठीक है, और ये हम राइटिंग स्टेज में यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या कह रहे हैं? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द की पॉइंट्स टू द टॉपिक, मतलब की पॉइंट्स हैं, आपने टॉपिक का, जो आपका एक टॉपिक है उसके कुछ की पॉइंट्स आपको जो पता है, ठीक है, मेजर की पॉइंट्स। ओके, व्हाट आर माइंड मैप्स? दिस इज द डेफिनेशन। माइंड मैप्स आर नॉट स्पाइडर डायग्राम। अ माइंड मैप इज अ डायग्राम यूज टू रिप्रेजेंट थीम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिंक्ड अ सेंट्रल की वर्ड और आइडिया। जो आपका सेंट्रल की वर्ड है या आइडिया है, उसके साथ जो लिंक करते हुए अदर आइडियाज़ हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, मतलब उनको आप एक मैप की फॉर्म में एक क्रिएट कर देते हो। सो दैट इज़ माइंड मैप। माइंड मैप्स आर बाय डेफिनेशन अ ग्राफिकल मेथड ऑफ टेकिंग नोट्स, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है? ग्राफिक्स। ग्राफिक्स किसको कहते हैं? पिक्चर को। मतलब माइंड मैप एक अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी जो इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का एक ऐसा वे है, ग्राफिकल वे है। माइंड मैप जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकल वे है, ठीक है। You don't tell your information by just speaking, of obviously speaking, but don't like this way, जैसे ये मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है, नॉट इन दिस फॉर्म। आप अपनी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में नहीं बताते, बट आप क्या करते हो, ग्राफिक की फॉर्म में। वो ग्राफिक में अब मैप होता है, वो किसी भी शेप का मैप हो सकता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं माइंड मैप। Their visual bases help one to distinguish words or ideas, often with the colors and symbols, ठीक है। आप डिफरेंट सिम्बल्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं टू शो, वही बात जो आगे हमने ग्राफ्स एंड चार्ट्स में की थी। दे जनरली टेक अ हायरार्कियल और ट्री ब्रांच फॉर्मेट विद आइडियाज़ ब्रांचिंग इनटू देयर सबसेक्शंस। मतलब एक ट्री लाइक जैसे होता है, ट्री में से ब्रांचेस निकलती हैं, आप उस तरह से अपनी ग्राफिक बना सकते हैं, ठीक है, कि सेंटर में आपका मेन आइडिया और उसकी ब्रांचेस निकल रही हो, तो वो मेन पॉइंट्स होंगे आपके। माइंड मैपिंग, हाउ डज समबडी मैप द माइंड? वी डू नॉट मेक अ मैप ऑफ माइंड साइंटिफिकली, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट rather we make a map about all the important things and we make our brain memorize it, so at times the information can easily be accessed. अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है माइंड मैप का? अब एक 3 या 4 पेजेस की एक, ठीक है, टॉपिक है, 3 to 4 pages, and you have to sum up that topic in a one
graphic in a one page, so it can help you later on by in your revision कि आप just जो है वो अपना मैप उसको रिवाइज कर लें, उसको जल्दी से गो थ्रू कर लें कि अच्छा ये मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये इस तरह लिंक कर रहा है, ये इससे लिंक कर रहा है। अगर कोई लिंक है पॉइंट्स का आपस में तो आप लिंक शो कर देते हैं बाय एरोज़, तो ठीक है, तो आप जो है वो आपकी 3-4 पेजेस को जो आपको गो थ्रू करना होता है आप जस्ट वो मैप को गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक तो टाइम आपका हो जाता है, बच जाता है। सेकेंडली आई थिंक ये मेरा पर्सनल भी है एक्सपीरियंस कि कोई इस तरह से जब कोई चीज़ रिप्रेजेंट की जाती है बाय ग्राफिकल व्यूज़, ठीक है, तो क्या होता है कि वो ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म जो है आपकी मेमोरी बन जाती है, ठीक है। अब 3-4 पेजेस में यू कैन स्किप सम आइडियाज़, यू कैन स्किप सम मेजर पॉइंट्स, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब एक बंदे की मेमोरी इतनी भी अच्छी नहीं होती कि 3-4 पेजेस में एग्जैक्ट उसको वर्ड्स बताऊँ कि क्या क्या आइडियाज़ हैं, लेकिन इफ़ यू हैव मैप ऑफ दोज 3-4 पेजेस, ठीक है, तो आपको मेजर आइडियाज़ लॉन्ग टर्म भी मेमोराइज हो सकते हैं, सेकेंडली ईजी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है माइंड मैप का। माइंड मैपिंग, अच्छा, बेसिकली माइंड मैपिंग इज़ डिफाइंड एज अ टेक्निक विच इज़ यूज टू वर्क आउट द रिलेशनशिप बिटवीन योर पॉइंट्स एंड आइडियाज़। सो यू कैन शो द रिलेशनशिप बिटवीन योर आइडियाज़ एंड योर पॉइंट्स टूवर्ड्स योर मेन आइडिया। मेन टॉपिक के जो आइडियाज़ हैं डिफरेंट, उनमें रिलेशनशिप शो कर सकते हैं। व्हेन यू सेट डाउन योर आइडियाज़ विजुअली इन दिस वे यू कैन मेक कनेक्शन एंड डेवलप ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि आप अगर मतलब एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप अगले बंदे को समझा रहे हैं, उसको भी इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा नेक्स्ट पर्सन के लिए, एंड आपके लिए भी बहुत इजी होगा एक चीज़ को समझाना, ठीक है। फर्स्टली तो खुद समझना है, अगले को समझाना बहुत इजी होगा। इट इज़ अ गुड वे टू बिगिन प्लानिंग फॉर एन असाइनमेंट, ऐसे रिसर्च टॉपिक और ओरल प्रेजेंटेशन, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ये बेनिफिट है। अच्छा जी, हाउ टू मैप आवर माइंड। Drawing a mind map involves gathering in all your ideas about a particular concept and organizing them into a pattern that shows the relationship between the ideas. You can order the information into important points and less important points. The way I have told you earlier कि आप क्या कर सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, एंड देन लेस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इस तरह से आप अपना जो है वो मैप बना सकते हैं। सो इट कैन शोज़ कि ये मेजर पॉइंट्स हैं, ये लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन उनका कनेक्शन है, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए लेकिन एक कंसाइज और ऑथेंटिक वे में। अच्छा जी, हाउ टू ड्रॉ द माइंड मैप। राइट द टॉपिक इन अ सर्कल इन द सेंटर और अ पीस ऑफ अ पेपर, ठीक है। लैंडस्केप पोजिशन फॉर ईच ऑफ द मेन पॉइंट, ड्रॉ आर्म्स आउट फ्रॉम द सर्कल. Write the keywords of the main point along each at the end. Draw smaller arms out from the main arms and where the right सब पॉइंट्स। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपका एक मेन पॉइंट, जैसे ये कह रहे हैं कि सर्कल हो एक मेन पॉइंट का, उसमें से आपने बस सारे पॉइंट्स निकाल देने। अगर उन पॉइंट्स से फर्दर यू थिंक दैट यू हैव टू शो सब पॉइंट्स, तो फिर आप उनका भी लिंक कर दें। यू हैव टू मेंशन बाय एरोज़, ठीक है। तो क्या है कि एक मेन पॉइंट से एक पॉइंट निकला है, तो उसका अगर आपने सब पॉइंट शो करना है तो यू कैन शो इट फ्रॉम द एरो, ठीक है। जैसे आपने डायग्राम्स में देखा होगा कि सब पॉइंट्स भी हो जाते हैं। सो इट इज़ नॉट कंसाइज कि मतलब उस तरह से ही बस कुछ पॉइंट्स बताने हैं, आप सब पॉइंट्स भी जो है वो बता सकते हैं। कंटिन्यू विद स्मॉलर आर्म्स इफ़ यू हैव other points or examples for the sub points, ठीक है। जैसे इसमें बताया, here the arms may not be straight, they can be of any sort. You can even color the damn thing, because the more you utilize graphics in the mind map the easier it will be for you to remember. अच्छा, अब कहते हैं कि you can show different colors, ठीक है। आप different colors के थ्रू शो कर सकते हैं, आप हाईलाइट कर सकते हैं, आप बोल्ड कर सकते हैं,
आप अपने कुछ, अगर आप समझते हैं कि कोई बहुत मेजर पॉइंट है, आप उसको बोल्ड कर दें, ठीक है। अगर कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, उसका सब पॉइंट है, उसको आप जो है वो बोल्ड ना करें, बट यू कैन शो डिफरेंट कलर्स। इससे क्या होगा कि एक तो वो आपकी जो ग्राफिक होगी वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी, और दूसरा ये कि वो इजी टू रिमेंबर हो जाएगी। सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान, मैं तो ऐसा करती हूँ कि कुछ चीज़ें जो अगर मुझे लगता है कि मुझे नहीं याद रह सकती, तो मैं उनको एक पेज पे ना पॉइंट्स बना लेती हूँ, ठीक है। अब उन पॉइंट्स को मैं किसी को हाईलाइट कर देती हूँ, किसी को मैं बोल्ड करके लिख देती हूँ, किसी की बॉल पॉइंट का कलर चेंज कर देती हूँ। सो द टाइम व्हेन आई हैव टू राइट दोज पॉइंट्स, ठीक है, तो मुझे याद होता है कि अच्छा वो वाले पॉइंट को मैंने ऐसे लिखा था। सो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी बन सकती है आपकी। अच्छा, ये है अब एक मैप। अब ये क्या है, हाउ टू ड्रॉ अ मैप, माइंड मैप। अच्छा, इधर क्या आ गया, टू ऐड थिंग्स लेटर लीव्स लॉट ऑफ स्पेस, पुट मेन आइडिया इन अ सेंटर, ठीक है, ये मेन आइडिया हो गया आपका। अब इसके यूजेस बता देने हैं, ठीक है। आपने अगर किसी चीज़ के यूजेस बताने हैं, तो मतलब आप एक पॉइंट बना रहे हैं तो आप उसको कैपिटल में लिख दें। ये क्या है, ड्रॉ क्विकली, नो नो पेंट, नो जजिंग, एडिटिंग लिंक पेपर, दीज आर लीनियर एक्टिविटीज़ एंड डिस्टर्ब माइंड रैपिंग। कुछ एडिटिंग करनी है, उसके लिए स्पेस छोड़ दें। मतलब अगर कोई आपको चीज़ बाद में याद आ जाती है, तो यू थिंक कि यू कैन राइट इट लेटर, मतलब या कोई बाद में चीज़ याद है तो उसके लिए भी स्पेस छोड़ दें। ब्रांचेस, एरोज, कलर्स, groupings can be used to show connections and relationship between ideas, ठीक है। कुछ ब्रांचेस हैं, उनको एरोज के थ्रू या कलर्स के थ्रू, ठीक है, उनमें जो है वो रिलेशनशिप शो कर सकते हैं। अच्छा, I don't think so that I have to show you a picture of a map, because from the very start we are just checking the maps and different diagrams in our textbooks, ठीक है, तो आपको पता ही है वो किस तरह करती है। अच्छा, एडवांटेजेस क्या हैं माइंड मैप के। एडवांटेज ऑफ माइंड मैप ओवर लीनियर नोट मेकिंग टेकिंग। लीनियर नोट मेकिंग टेकिंग क्या होता है कि तो स्ट्रेट आप एक पॉइंट्स बना लेते हो। अब उसमें और माइंड मैपिंग में क्या फ़र्क होता है, तो टाइम सेव्ड हो जाता है, नथिंग ओनली रेलिवेंट वर्ड्स, ठीक है, रीडिंग ओनली रेलिवेंट वर्ड्स, आप सिर्फ रेलिवेंट वर्ड्स पढ़ते हैं। रिव्यूइंग माइंड मैप नोट्स, नॉट हैविंग टू सर्च फॉर की वर्ड्स अमंग्स द अननेसेसरी वर्बिएज। मतलब आपको वही जो मैंने आपको पहले बताया कि मतलब यू डोंट नीड टू गो थ्रू द 3-4 पेजेस of the topic, you just need to check out the main points and the relevant points of the map अगर आपने बनाया हुआ तो ठीक है, आपको सारा गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं होती है। कंसल्टेशन ऑन रियल इशू इन्हांस्ड, तो फिर क्या होता है कि रियल इश्यूज़ जो होते हैं, जो मेन पॉइंट होता है, समटाइम ऐसा होता है कि यू हैव 3-4 पेजेस ऑफ अ टॉपिक एंड वट यू हैव टू डू कि आपको सारा रीड आउट करना है जस्ट टू रिवाइज इट, एंड फॉर द सेक ऑफ रिविजन क्या होता है कि समटाइम आप इंसान का कहीं माइंड उधर चला जाता है, कहीं और चला जाए, तो आप मेन पॉइंट छोड़ देते हो और जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं या लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आप उनको रिवाइज कर लेते हो। बहुत बार ऐसा होता है। सो अगर आपके पास एक मैप बना होगा तो आपको पता होगा कि ये मेजर इश्यूज़ हैं, ये मेजर पॉइंट्स हैं, आइडियाज़ हैं, एंड उसको आपने डिस्कस करना है, और ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जो है वो रिवाइज कर लेते हो। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो बेनिफिट है वही है एसेंशियल की वर्ड्स जस्ट पोस्ट इन अ टाइम एंड स्पेस इम्प्रूव्स क्रिएटिविटी एंड रिकॉल, आपकी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकता है। अच्छा जी, की पॉइंट्स क्या आ गए हैं। Mind mapping is powerful note-taking method. Mind maps not only highlight important facts but also show the overall structure of a subject and the relative importance of individual parts of it. They are great when you need to think creatively and can help you to make new connections between ideas. This is useful when you have problems to solve. To use mind map effectively, it's best to print your words, to use different colors, to add visual impact, and to incorporate symbols and images to super creative thinking, ठीक है, जो मैंने सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर दी हैं सारी, कि आप डिफरेंट जो है आपके आइडियाज़ उनमें कनेक्शन भी रहता है, ठीक है। अगर आपने अपने मैप को बहुत ब्यूटीफुल करना है, उसमें कलर्स ऐड करें, विजुअल इम्पैक्ट दें, ठीक है। इफ़ यू डू एनी फॉर्म ऑफ
research or not taking, try experimenting with mind maps. You will love using them. अच्छा अच्छा, अब आगे जी हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ नेम गिवन टू द सिचुएशन when a group of people meet to generate new ideas around a specific area of interest. Using rules which remove inhibitions, people are able to think more freely and move into new areas of thoughts, and so create numerous new ideas and solutions. This, the participants shout out ideas as they occur to them and then build on the ideas raised by others. All the ideas are noted down and are criticized only when the brainstorming session is over. All the ideas evaluated. एक्चुअली ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग इंडिविजुअल भी होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग ग्रुप में भी होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग ठीक है एक मतलब ग्रुप फॉर्म में भी हो सकती है, जैसा कि एक सेकेंड, अच्छा ब्रेन स्टॉर्मिंग मैंने इधर देखी थी, जी इंडिविजुअल ब्रेन स्टॉर्मिंग भी होती है, ठीक है, ग्रुप ब्रेन स्टॉर्मिंग भी होती है, 2 टाइप्स की ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल भी हो सकती है और ग्रुप में भी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि आपने अब जैसे हम लाइक ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो एक टॉपिक है, अब हर कोई उसको लेके अपने आइडियाज़ बताएगा, ठीक है, उस पर अगर किसी को मतलब इफ़ समबडी वांट टू मतलब क्रिटिसाइज दैट पॉइंट के मतलब इज़ नॉट like some of you, when I was delivering a lecture, some of you don't get agree with me, yeah, some of get agree with me. तो क्या होता है कि हम वो एक किस्म की ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, आप लोग, मैं जब आपसे पूछती हूँ आप लोग अपने आइडियाज़ बताते हैं, आई शेयर माई आइडियाज़ विद यू एंड यू पीपल ट्राई टू शेयर योर आइडियाज़ विद मी एंड सम ऑफ गेट एग्री विद दैट एंड सम डू क्रिटिसाइज ऑन दैट। तो वो क्या होता है कि अब उस एक टॉपिक को लेके जो भी क्रिटिसिज्म है, जो भी एग्रीमेंट है, ठीक है, मिलके वो फिर उसको जो है वो नोट डाउन किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट आइडियाज़ को। अब ठीक है, वो फिर इंडिविजुअल भी हो जाता है, इंडिविजुअल भी हो जाता है और ग्रुप में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है। बट ये क्रिटिसिज्म एंड जो भी ठीक है एग्रीमेंट है वो तब लिखा जाता है व्हेन द टॉपिक इज़ एवेल्युएटेड कम्प्लीटली। अच्छा जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ प्रोसेस फॉर जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। अब माइंड मैपिंग में क्या होता है कि वी जस्ट मैप द आइडियाज़ विच आर ऑलरेडी रिटन एंड विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टेड, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, उनको हम एक मैप की सूरत में जो है वो लिख देते हैं। लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है कि हम न्यू आइडियाज़ जो हैं वो डिस्कस करते हैं, न्यू आइडियाज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, मतलब जैसे मैं अब अकेले स्टडी करती हूँ या मैं आप लोगों की लेक्चर बनाती हूँ, तो आई रोट वट एवर आई थिंक द इम्पोर्टेंट एंड मेजर आइडियाज़, सो आई एम यूज टू राइट दोज मेजर आइडियाज़ एंड पॉइंट्स, ठीक है, ये मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग करती हूँ। बट व्हेन इन द क्लासरूम सेटिंग में क्या होता है कि हम ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, मैं आपको बता रही होती हूँ, आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे बता रहे होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वी आर यूज टू जनरेट न्यू आइडियाज़, न्यू पॉइंट्स, ठीक है, तो वो ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ कॉन्फ्रेंस टेक्निक बाय विच अ ग्रुप अटेम्प्ट टू फाइंड a solution for a specific problem by amassing all the ideas spontaneously by its member. The brainstorm is to use a set of specific rules and techniques which encourage and and spark of new ideas which would never have happened under normal circumstances. जब एक ग्रुप ब्रेनस्टॉर्म होगा, ऑब्वियसली एक नए आइडियाज़ जनरेट होंगे विच आर नॉट नॉर्मली हैपन, ठीक है, अब हर कोई अपना अपना एक आइडिया होगा, जिसको जितनी समझ आ रही होगी इंडिविजुअली वो उतना समझ रहा होगा, लेकिन ग्रुप, इसलिए कहते हैं ग्रुप स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ग्रुप स्टडी में क्या होता है कि ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, हर कोई अपना आइडिया बता रहा होता है,
यू ओनली नो द वन पॉइंट अबाउट द वन थिंग, ठीक है। आप अपने पॉइंट, अब जो सेम थिंकिंग अगले बंदे की नहीं हो सकती, द अदर पर्सन हैज़ सम अदर पॉइंट्स, ठीक है, जो आपसे डिस्कस करते हैं एक दूसरे से, तो सो यू क्रिएट न्यू आइडियाज़। उन न्यू पॉइंट से आप यू कैन मेक थर्ड आइडिया, ठीक है। इस तरह होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। Exclusively brainstorming and mind mapping are important for a person undertaking a concept regardless of any theme. Brainstorming means recalling what one knows about a particular topic. In general practice, it can be done by individual or a group of people. It gives a boost of your confidence and creates a work plan. Not only does it simplifies your work but also adds strategy to it. ठीक है, आप अपने काम को लेके बूस्ट अप हो जाते हो, ठीक है, कि ओके अब मतलब यू क्रिएट न्यू आइडिया व्हेन एवर यू ट्राई टू थिंक न्यू अदर थिंग्स अबाउट सेम टॉपिक। एक टॉपिक है, आपने उसको पढ़ लिया है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके साथ अगर कुछ हो चुका है या सम अदर थिंग्स यू वांट टू लिंक विद दैट मेन टॉपिक, तो आप अपने आइडियाज़ जनरेट करते हो। तो ये क्या होता है, बूस्ट अप एक्टिविटी हो जाती है फॉर योर वर्क, ठीक है। हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म, there are ways to user new ideas through this technique. फ्री राइटिंग हो जाती है, वो मैं आपको बताऊंगी। मेकिंग अ क्यूब, डिवाइडिंग अ प्रॉब्लम बिटवीन पीपल लाइक पीसेस ऑफ पजल्स, ठीक है। अब एक टॉपिक है तो आप उसके कीवर्ड्स लिख लेते हो, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी टॉपिक है उसको पहले कीवर्ड्स लिखें कि उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, कीवर्ड्स, ठीक है। अब आप वो कीवर्ड मतलब अगर आप ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, हर बंदा एक एक कीवर्ड ले लेता है, ठीक है। उसके बाद यू ट्राई टू लिंक दोज की वर्ड्स विद ईच अदर, उनमें रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं उन पॉइंट्स में, तो वो एक पजल क्रिएट हो जाता है, वो बहुत मज़े की हो जाता है, ठीक है। द टॉपिक कैन बी डिवाइडेड इनटू अदर ब्रांचेस, कि अगर किसी बंदे ने डिस्क्राइब करना है, किसी ने कंपेयर बताना है किसी चीज़ का, एसोसिएट, एनालाइज, अप्लाई एंड आर्ग्यू, ये सब पॉइंट्स। मतलब अगर एक टॉपिक को लेके आप बना लें कि किसी ने इसकी डेफिनेशन बतानी है, किसी ने इस पॉइंट के यूजेस बताने हैं, किसी ने इसके एडवांटेजेस बताने हैं, किसी ने डिसएडवांटेजेस बताने हैं, सो क्या होता है कि आप एक पजल क्रिएट हो जाती है एंड यू कैन मेक रिलेशनशिप बिटवीन दीज पॉइंट्स, और एक क्या हो जाता है कि एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। किसी ने एनालाइज करने हैं, किसी ने कंपैरिजन बताना है, इस तरह से। And when you are doing simple individual brainstorming, so you have to do alone, not a big deal, but if you are used to do individual brainstorming, so it's well and good. Why brainstorming? All those techniques can help us in order to realize any idea or project. Clustering or writing down random points which come to your mind so that you do not forget them later on. Listing and bulleting, this is one of the most basic and most commonly used techniques. क्या मतलब एक वही बात कि आप जो पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं, यू थिंक यू कैन फॉरगेट इट लेटर ऑन, सो आप क्या करते हैं, उसकी लिस्टिंग बना लें, ठीक है। न्यू आइडियाज़ भी आपको मिल जाएंगे। द अदर डे when you revise those main points and bullets, I'm sure you will come with another new points. ऐसा होता है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग की भी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। एक्चुअली फ्री राइटिंग क्या होती है? When you free write, you let your thoughts flow as they will, putting pen on paper and writing down whatever come into your mind. You don't judge the quality of what you write, and you don't worry about styles or any surface level issues like spelling, grammar, or pronunciation. If you can't think of what to say, you write them down. Really, there are advantage of this technique is that you free up your internal critic and allow yourself to write things you might not write if you were being too self-conscious. मतलब आप you don't care about the मतलब ग्रामर, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, बट यू जस्ट गो विद द फ्लो, कि आप जो आपके माइंड में आ रहा है, यू जस्ट यूज टू राइट इट, ठीक है। उसको कहते हैं फ्री राइटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। फ्री राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब लास्ट है हमारा जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस। इन दिस टेक्निक you would use the big 6 questions that journalists rely on to thoroughly research a story. The 6 are who, what, when, where, why, and how.
राइट ईच 5 होते हैं, हाउ को नहीं हम वैसे वाई में डाल सकते, ठीक है। राइट ईच क्वेश्चन वर्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर लीविंग स्पेस बिटवीन दैम, then write out some sentence or phrases in answer as they fit your particular topic. You might also record yourself or use speech to text if you had rather talk out your ideas. Now look over your batch of responses. Do you see that you have more to say about one or more two of the question, or are your answer for each question pretty well balanced in depth and content? Was there one question that you had absolutely no answer for? How might this awareness help you to decide how to frame your thesis claims or to organize your paper, or how to might it reveal what you must work or further doing library research or interviews or further note taking? For example, if your answer reveals that you know a lot more about where and why something happened than you know about what and when, how could you use this lack of balance to direct your research or to shape your paper? How might you organize your paper so that it emphasizes the known versus the unknown aspect of evidence in the field of study? What else might you do with the result? अच्छा, इसमें वो कहता है कि क्या होगा, आप अपने किसी भी टॉपिक को लेकर इस तरह से डील करें कि जैसे एक जर्नलिस्ट अपने पेपर को डील करता है, ठीक है। आपने एक टॉपिक रीड आउट कर लिया है, देन यू हैव टू राइट 5 W's. हु लिखें, कुछ स्पेस छोड़ दें, व्हाट लिखें, कुछ स्पेस छोड़ दें, व्हेन लिखें, कुछ स्पेस छोड़ दें, वेयर, व्हाई। अब एक टॉपिक है, उसके ये जब आपने 5 W's लिख दिए, देन ट्राई टू आंसर दोज W's, ठीक है। उन W's के आंसर लिखने की ट्राई करें, एंड देन ट्राई टू फिक्स द आंसर, और चेक करें कि क्या वो मतलब फिट है. डू यू सी दैट यू हैव मोर टू से अबाउट वन और मोर ऑफ द क्वेश्चन, और योर आंसर फॉर ईच क्वेश्चन प्रीटी वेल बैलेंस्ड इन डेप्थ एंड कंटेंट. मतलब वो कंटेंट से आपके रिलेट कर रहे हैं, मेन आइडिया पर डिस्कस हो रहा है. वॉज देयर एनी क्वेश्चन दैट यू हैड एब्सोल्युटली नो आंसर फॉर? हाउ माइट दिस अवेयरनेस हेल्प यू टू डिसाइड हाउ टू फ्रेम योर थीसिस क्लेम और टू ऑर्गेनाइज योर पेपर. ये आपको लेटर ऑन क्या मतलब आप एक रफ सा ड्राफ्ट बना लेते हैं, ठीक है. आप एक थीसिस लिख रहे हैं, आप अपना पेपर लिख रहे हैं, आप अपना कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं, ठीक है. आप उसके जब आपने 5 W's लिख लिए एंड देन यू अटेम्प्टेड द आंसर्स ऑफ दोज W's, तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि उसके बाद एंड देन यू ट्राई टू आंसर दोज W's, ठीक है, एंड ट्राई टू फिक्स द आंसर. लेटर ऑन वट यू विल रियलाइज़ कि क्या वो आंसर जो है वो ऑर्गेनाइज वे में है, ठीक है. अब आपका पेपर यू कैन ऑर्गेनाइज इन अ वेरी वेल फॉर्म, ठीक है, अपने थीसिस को. लेटर ऑन व्हाट यू विल रियलाइज़ के सीक्वेंस है आपके थीसिस में, सीक्वेंस है आपके पेपर में, या आपने जो आंसर अटैम्प्ट किया है उसमें सीक्वेंस है कि मतलब कुछ चीज़ें जो आपने बाद में डिस्कस की हैं, कुछ चीज़ें पहले डिस्कस की हैं, उसको आप एक सीक्वेंस दे सकते हैं, ठीक है. सो 5 W's are very important for organizing your paper, organizing your thesis, organizing your note, whatever you write, ठीक है. उन सब चीज़ों को लेके ये 5 W's आपको very helpful होंगे. So I think now it's all clear to you. We are done with the mind mapping, brainstorming, free writing and journalistic questions. These are very important and useful techniques which you can use for your creative writing. You can use for your pre-writing stage for to improve your writing skills. So these stages are very important, and I think so free writing is very important for the pre-writing stage. The students who believe and who feel that their writing is not good, ठीक है, they are not well aware by the sentence formation, grammar and ठीक है, उनकी ये नहीं इतनी चीज़, they can firstly start with the free writing stage. उसके बाद आप फिर बाकियों को आप लोग प्रैक्टिस करें. सो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल. आई डोंट थिंक सो कि अब कोई चीज़ इसमें क्लियर नहीं होगी, सब चीज़ें क्लियर होंगी. और अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको मिसिंग है, कोई भी चीज़ की समझ नहीं आती, यू कैन आस्क मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप.
लास्ट जो आपका लेक्चर था वो ऐसे राइटिंग पे था, दैट इज़ फ्रॉम द राइटिंग स्किल। ऐसे राइटिंग भी वो आई थिंक मैंने बहुत ठीक है उसको मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, एलैबोरेट बहुत अच्छे वे में किया है। उसमें भी कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो आप लोग पूछ सकते हैं। यू पीपल आर नॉट यूज टू आस्क मी एनी क्वेश्चन। आई फील दैट I don't know either you are going through your lectures or not. I don't have any idea until or unless I am available there to ask you, either you get it or not. But आप लोग नहीं बताते मुझे क्या कुछ चीज़ समझ में आई कि नहीं। बट दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू नो अबाउट द न्यू थिंग्स। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग में ये सब चीज़ें बहुत आपको लॉन्ग टर्म जो है हेल्पफुल होंगी। सो अभी जितना इस चीज़ में डीपली जाके आप इसको ट्राई करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपके लिए ये हेल्पफुल होगी। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।